पंजाबी खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਲਗਾਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, GST ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਪਛੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NGT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ NGT ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ फैसले ਦਾ पूरे पंजाब तरफों वो स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री पंजाब मैंने मीटिंग की थी। दुष्यंत चौटाला जो एविएशन मिनिस्टर हैं हरियाणा से हमारी बात हुई थी, उसके बाद सहमति बनी। हमने लेटर भेजा एविएशन मिनिस्ट्री को कि शहीद आज़म भगत सिंह का 28 सितंबर को जन्मदिन है, उससे पहले अगर ये गिफ्ट दे दिया जाए कि शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसका नामकरण कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमारी कोशिश को बूर जो आया और हमारी कोशिशें रंग लाई और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये डिक्लेयर किया कि चंडीगढ़ मोहाली का एयरपोर्ट जो है वो उसका नाम जो है भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁਭਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਪਰਸੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਮਸਟੰਡੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੜਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਆਪਦੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-4 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਕੜੇ ਛੇਕੜੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 13 ਤਾਂ 15 20 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਪਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਵਗਾਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਆਪਦੇ ਸੋਲੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ नेताओं लिए क्यों नहीं हो सकता। किसानों के साथ मीटिंग करते थे विज्ञान भवन में और कृषि भवन में डॉक्टरों के साथ। इनको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कृषि भवन में किसानों को बुलाओ, विज्ञान भवन में डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कभी बात की नहीं किसी से। जब ट्रंप की वाइफ ने सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने चाहे, इच्छा व्यक्त की, पहले तो उसको आधा पौना घंटा मनाया गया, ये जिद मत करो ना देखो। लोग मालिक हैं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। कि हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो बहुत डंडे खाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी वालों
आप गुजरात से जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अभी भी जिन्होंने हमारे इनकलाब का दिया जो है वो बुझने नहीं दिया, इस इनकलाब के दिए में तेल की जगह हमें खून भी देना पड़ जाए, हम इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। दोस्तों, हम लोग भाषण नहीं देते, हम लोग आपके साथ बातें कर दें। भाषण वो होता है जो किसी द्वारा लिखा जाए, फिर उसका रट्टा लगाया जाए, फिर वही बात बोली जाए, कॉमा और डंडी भी चेंज ना हो, तो वो तो होता है भाषण के आज क्या बोलना है, कैसे भावनाओं को भड़काना है, किस बात से लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलनी, उसको भाषण कहते हैं। जो हम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हम करते हैं बातें, जैसे आप लोग करते हो, बस स्टैंड पर बैठकर बातें करते हो, चाय की रेडी समोसे की रेडी पर बैठकर बात करते हैं हम, गांव देहात में खेत में बैठकर बातें करते हैं। वो बातों में सच्चाई होती है, उन बातों में आदान प्रदान भी होता है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम सुनते भी हैं। और जो बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। जब मन की बात पूरी कर ही दी तो फिर रेडियो से क्यों दोबारा करनी पड़ रही है? लोगों के मन की बात सुन लो ना, लोगों के मन की बात सुन लो, लेकिन सुनने की आदत नहीं है। मतलब इन्होंने जितने साल हो गए राज करते हुए, जब किसान आंदोलन चला उधर से डॉक्टर भी एम्स के वो भी हड़ताल पर थे, इधर किसान भी। अब कभी टेबल पर बैठने की तो आदत है नहीं कि बातचीत करके कोई मसला सुलझा दें। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहां बुलाएं। किसानों के साथ मीटिंग करते थे विज्ञान भवन में और कृषि भवन में डॉक्टरों के साथ। इनको पता ही नहीं चल रहा था कहां, कृषि भवन में किसानों को बुलाओ, विज्ञान भवन में डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कभी बात की नहीं किसी से, बैठे नहीं, टेबल पर बैठने नहीं आता, समस्याओं का हल नहीं, चलते रहने दो बस जो चलता है। सो आज हम आपके पास आए हैं कि जो यूथ है हमारे देश का, उसमें बहुत एनर्जी है। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ हमें कहा जाता है। 65% हमारा जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से नीचे है, किसी और देश में नहीं है। बहुत एनर्जी है, अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। अगर यही एनर्जी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई तो ये खतरनाक भी हो सकती। बुरी संगत में जा सकते हैं हमारे युवा, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं हमारे युवा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहां भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि इनके अपने ही नहीं खत्म होते भाई, अपने रिश्तेदार भूआ फुफ्फा सब चलते हैं। आम आदमी पार्टी है जो यंग लड़के लड़कियों को विधानसभा और पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक लेके जाती है। यह आम आदमी पार्टी का कमाल है। नया ब्लड, नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, वो कहां से निकलेंगे? यूथ से। यूथ के पास कुछ नया करने के लिए है, अगर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो जहाज होता है बहुत ताकतवर होता है, 747, 787, 350 पैसेंजर, उन सबका सामान, 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल और अपना वजन लेकर उड़ जाता है। इतना ताकतवर होता है इंजन, उसकी इंजनों में ताकत। लेकिन जब वो जहाज अहमदाबाद के एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा है तो उसकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहाँ बैक गियर नहीं होता, बैक वो हो नहीं सकता, आगे वो जा नहीं सकता, तो क्या करे? कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उसको, जहाज को ऐसे सीधा करके
रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है, जहाज को रनवे नज़र आ जाता है, फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, आपका काम ख़त्म, अब मेरे इंजनों पर यकीन है। आगे उसके इंजनों पर डिपेंड करता है वो 40 मिनट में दिल्ली उतरता है या फिर 14 घंटे के बाद सैन फ्रांसिस्को उतरता है, ये उसके इंजन पर डिपेंड करता है। हमारे यूथ जो हैं सभी जहाज हैं। आपके टैलेंट के इंजन पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रत्ती भर भी शक नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर इंजन है आप लोग, लेकिन कोई ट्रैक्टर बन के नेता सामने नहीं मिला जो हमको रनवे का रास्ता दिखा दे, बस उसके बाद उड़ना हमारा काम है। आम आदमी पार्टी आपको रनवे का रास्ता दिखाएगी कि कैसे उड़ना है। दिल्ली में लोग कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे, जाके देखिए सरकारी स्कूल, प्राइवेट से अच्छे स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, बच्चों के लिए स्पेशल लैब्स, ये सरकारी स्कूलों में। अब तक 4 लाख बच्चे ने जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने प्राइवेट से हटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिए हैं दिल्ली में। ये क्रांति नहीं तो और क्या है। जब ये कह रहे हैं केजरीवाल कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, जब ट्रंप की वाइफ ने सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने चाहे, इच्छा व्यक्त की, पहले तो उसको आधा पौना घंटा मनाया गया, ये जिद मत करो ना देखो, लेकिन वो नहीं मानी, मैं तो देखूंगी सरकारी स्कूल। तब फिर बीजेपी वालों ने एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, अरविंद केजरीवाल के पास क्यों आए, एक स्कूल की चाबी दे दो जी, स्कूल हमारे वाले दिखाने पड़े। फिर फर्क है। शिक्षा में क्रांति आई है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है 27 साल में। अमित शाह जी स्कूल का उद्घाटन करने गए थे। वो मिर्जा गालिब के शेर को अगर दूसरी तरफ से चेंज कर देना कि हैरत हुई साहब आपको स्कूल में देखकर, ऐसी हैरत हुई आपको स्कूल में देखकर ऐसा क्या हुआ कि खुदा याद आ गया, कि शिक्षा याद आ गई, भगवान याद आ गया, रब याद आ गया। सो अब उनको शिक्षा की तरफ आना पड़ रहा है, पहले नहीं आते थे ये। तो आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब धर्म, जाति, लालच, ये वो पैसा, ये सब नहीं चलेगा, अब सिर्फ काम की राजनीति पर वोट जो है वो दिए जाएंगे। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट, और पंजाब में इसको फॉलो किया गया है। पंजाब में 6 महीने हुए अभी हमारी सरकार बने हुए, तो जो भी सरकार बनती थी वादे बहुत बड़े बड़े करती थी, सरकार बनते ही बस बयान आने शुरू हो जाते, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो, अलमारी को हो, कुछ और कह लो, खजाना तो वो होता है जिसमें कुछ हो, पैसा वैसा। तो नेताओं के लिए खजाना कभी खाली नहीं होता, जनता के लिए खाली क्यों हो जाता है। आते ही हमने सबसे पहला फैसला किया, हमारे यहाँ पंजाब में विधायक जो हैं, जितनी बार विधायक बने उतनी बार की पेंशन मिलती थी। कई ऐसे विधायक भी थे जो 6-6 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार 7वीं बार उनको टिकट नहीं मिला, जहाँ हार गए, उनको 4.5, 5, 5.5, 6 लाख पेंशन मिलती थी हर टर्म की अलग से। कई विधायक ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतेंगे तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, हारने के बाद लाखों की रुपए की पेंशन मिलेगी। हमने आते ही एक्ट हम विधानसभा में लाए, 1 विधायक 1 पेंशन, बस। भाई आते तो आप हम जनता के पास आते हो कि सेवा का मौका दीजिए, अब सेवा इतनी महंगी पड़ती है जनता को, भाई ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए आपकी। सो खुद मालिक बनो। कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए तो गरीबी छुपाने के लिए दीवार ना बनानी पड़ती।
हम उनको मतलब इधर नहीं देखने देते, इधर मत देखना, बस ऐसे सीधे सीधे चले जाओ, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। हद है, हद है। कितनी देर झेलेंगे यार हम? आओ देखो, हमें कोई राजनीति का शौक नहीं। हमने क्या लेना था? IRS ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। उस नौकरी को लात मारी, कहा नहीं, देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम बदलने की ठान ली। मैं फेमस आर्टिस्ट था, आपने देखा होगा लफ्टर चैलेंज वगैरह में हम जाते थे, पंजाबी में बहुत देर से काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी राजनीति की? बस हमें यह था कि अगर इनसे नहीं होता चलो हम करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बोलते थे हमें, जब आंदोलन चल रहा था तब ये बोलते थे, ताने मारते थे, सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। हमने भी पार्टी बना ली, अब चुन के आ गए। चुन के आ गए तो पार्लियामेंट में मैं गया, जो सबसे ज्यादा बोलता था कि चुन के आइए, सबसे पहले मैंने उसी को कहा। मैंने कहा जी हम तो चुन के आ गए, आप राज्यसभा से आए हो, चुन के आओ, चुन के आओ। तो इनको ये लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई नई पार्टी आएगी और हमारा धंधा बंद कर देगी। लेकिन हो जाता है, हो जाता है। मैं इनको, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनका, ये वक्त से खेलते हैं, ये अहंकार करने लगे हैं, अहंकार आ गया इनमें। ये वक्त से खेलने लगे हैं कि हाँ वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। बड़े बड़े मुगल अंपायर आए थे यहाँ पे, 800 साल राज कर गए हमारे देश पर, कोई उनका विरोधी नहीं था, सिर्फ अहंकार ने मरवाया था उनको। वो भी ऐसे समझने लगे थे कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन नहीं, आदमी को वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। अभी अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है। उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। यही मैं आपको कहने आया हूं, 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो। वक्त आम आदमी पार्टी का है, वक्त आम लोगों का है, वक्त पारदर्शिता की, ईमानदारी की राजनीति का है, वक्त स्कूलों में अच्छी शिक्षा का है, वक्त हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज का है, वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वक्त इंडस्ट्री का है, वक्त जो है वो हमारे देश को नंबर 1 बनाने का है। इसलिए साथ दे दी, आपके साथ की जरूरत है। और युवा जो है, हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, जो यूथ है वही चलता है हमारे साथ। मोटरसाइकिल में तेल भी अपना डलवाते हैं, और हमारे लिए हमसे पैसे, हमारे पास पैसे है नहीं, इनके पास तो बहुत माल है, बहुत लूटा हुआ माल है देश का। आम लोग कभी करप्ट नहीं होते, आम लोग देशभक्त हैं। आप लोग टैक्स देते हो, कई सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हमसे तो हम कभी टैक्स मांगा नहीं। ये मत सोचना। टैक्स कब देते हो आप? सुबह जब जगते हैं हम, चाय बनानी है, आपने लाइटर ऑन किया, गैस ऑन की, टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है, और हर महीने बढ़ा देते हैं उसका रेट। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है, चीनी डाली, टैक्स है, दूध के बाद फ़ोन किया, मोबाइल फ़ोन, टैक्स है। आप कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं गए शहर में, पेट्रोल डीजल डलवाया, टैक्स है। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? सो आपका पैसा है, कोई बैंक को लूट के जाता है ना,
तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमारा पैसा जाता है, किसी न किसी तरीके से हमसे लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं यूथ को कि यूथ जिधर हो जाए तख्ते पलट जाते हैं, क्योंकि यूथ के पास पावर है। वो जमाना गया कि बड़े पिताजी ने बोल दिया इसको वोट देना है, पिछले 40 साल से इनको वोट दे रहे हैं, चलो जी पूरे परिवार की वोट उसको ना। अब यूथ की बात मानते हैं और अपने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भी कहना कि आपके कहने पर हमने बहुत बार वोट दिया, एक बार हमारे कहना मान के देख लो, उसके बाद जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था, ये पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था, मैंने कैसी बातें मत करो, देश के लोग हमारे अमन पसंद हैं, भाईचारक साँझ हमारी बहुत कमाल है, बॉन्डिंग हमारी सोशल बॉन्डिंग आप तोड़ नहीं पाओगे, गलत फहमी में हो। मैंने पार्लियामेंट में बोला था ये कि लंबे सफ़र, तुम अपनी सभा कर लो, इसमें हमारा क्या कसूर है कि आपके यहाँ लोग नहीं आते, हमारा क्या कसूर है इसमें? आप अपनी रख लो, बराबर रख लो, आप अपनी सभा करो, हम अपनी सभा करेंगे, आप अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे। लोग मालिक हैं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ा है लोगों ने, पब्लिक है जी, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो बहुत डंडे खाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी वालों, आप गुजरात से जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, इनकलाब। भगत सिंह का जन्मदिन है, भगत सिंह का ये नारा है, तो थोड़ा जोर से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हैं अभी भी जिन्होंने हमारे इनकलाब का दिया जो है वो बुझने नहीं दिया। इस इनकलाब के दिए में तेल की जगह हमें खून भी देना पड़ जाए, हम इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे।